Hello everyone, I welcome you all again on the YouTube channel of TechUp Gate classes. So those who have not subscribed yet, just subscribe so that you will get all the update from outside whenever we are uploading the lectures. So this is all about me. Okay, we have started the machining and the machining tool operation subject. Okay, from the mechanical engineering or especially manufacturing technology. In the last lecture, lecture number 4, we discussed about the relationship between the cutting velocity, chip velocity, and the shear velocity. Okay, and we also discussed about the different types of the chip that is formed during the machining operations. Okay, today's in the today is the fifth lecture that we are going to discuss about the geometry of a single point cutting tool. Okay, and we'll also discuss about the tool signature. Okay, so as I said in the last video that you should not feel a gap between the lecture 4 and lecture 5. So the relationship that we derived in the last class, that is in between the different types of the velocity. So that one of the numerical that we are taking on that, and then we'll proceed for the single point cutting tool geometry. Okay, so let's start. It's a very very basic and very simple problem that we are discussing that has been asked previously in the assistant engineering examination of UK Uttarakhand PSC. Okay, and हालांकि इसका कोई लेवल भी नहीं है, but still because numerical should be there. Okay, uh, a rake angle of a cutting tool is 15 degree, means alpha की value आपको given है. The shear angle is 45 degrees, so the value of phi is given to you, and the cutting velocity is 35 mpm. mpm is meter per minute. Okay, so the value of v is given to you. Okay, now what is the velocity of the chip along with the tool face? Okay, so what we have to find out? We have to find out the value of vc. So what the relationship that we find out in the last video. So this is v upon cos phi minus alpha, that will be equals to vc upon sine phi, and this one more, that is for the shear, that is vs upon cos of alpha. Okay, this relationship we derived in the last class. So now we know the value of v, phi and alpha, so we have to find out the value of vc. So from this formula we can get the value of vc, that is v into sine phi upon cos phi minus alpha. So this will be like v value is 35 into sine phi. Sine phi is how much? This is 45 degree upon cos phi minus alpha. So this is 45 minus 15 degree. Okay. So please calculate the value of this. Okay. So I have calculated the value of the same, and what answer I am getting is, I am getting the answer that is 28.57 mm. Okay, so approximately answer will be sorry, not mm, this is mpm, because it's not a length, it's a velocity. Okay, so this is a option A will be there. Okay, now is by the way, this in this problem the velocity of shear velocity is not asked, but I'm giving you this in I cannot give the assignment, but homework you can say, so that आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करिए, एंड इन द ड्यूरिंग दिस सेशन, during this video session, you can just tell me in the comment section. Okay, comment box, so that in the next video I will clear this value to you. Okay guys, so let's move to the next one, which is our main topic of today, that is a single point cutting tool geometry. Now what is my intention to take this topic in a very detailed way is like I'm using a billet of this rubber. Okay, by the way, it's my I forget to mention in the last video that you should bring the this rubber and the cutter. Okay, because when we are going to study, I want that you should go in a detail, because once you will go for the interview, means at least whatever the two angles are there, tool angles are there are different types of the angle in a single point cutting tool geometry. So what I want is you should this whatever the information that I'm giving you about the angles, this should be clear to you कि after all आपको ये एंगल जो है ये रटने ना पड़े कि अच्छा ये बैक रैक एंगल होता है, अच्छा ये साइड रैक एंगल होता है, अच्छा ये क्लियरेंस होता है. क्योंकि क्या होता है कि यूनिवर्सिटी टीचिंग में या फिर जब भी आप लोग एट योर ओन लेन व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग एट योर ओन लेवल, you are unable to get in touch. You are just reading the books only. Okay, so you are just getting the things from book only, but when you will see the actual things, and actual things, that time you will get an idea
तो आज मैं एक सिंपल प्रोटोटाइप यूज कर रहा हूँ एंड थ्रू दिस प्रोटोटाइप वी आर मेकिंग अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल. ओके, सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट यूजिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फिगर. ओके, मतलब डिफरेंट फिगर में यूज कर रहा हूँ, आपको बताता हूँ इसमें. एंड सिंपल सेम एप्लीकेशन वी विल अप्लाई ऑन दिस रबर. ठीक है, तो देखिए मैं आपको ये समझा देता हूँ सबसे पहले. ये देखिए ये जो ये रबर है मेरा, इधर से स्टार्टिंग है नीचे से, एंड दिस इज लाइक एंड पोर्शन. ओके, तो जो भी अब मैं इधर टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा ऊपर की साइड में, इस साइड में, वो एंड से स्टार्ट होगी. ठीक है, नाउ इफ आई एम यूजिंग दिस लाइक दिस, क्योंकि देखिए क्या है कि टर्निंग जो है, टर्निंग और फेसिंग, ये सिंपल एग्जांपल होते हैं थ्रू व्हिच वी कैन अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स. ओके, सो दैट्स व्हाट आई एम यूजिंग. लाइक this is a shaft, okay, and this is a single point cutting tool. अभी ये tool नहीं है, अभी ये billet है. okay, we have to make this tool. तो अभी क्या है कि मान लीजिए कि अगर ये billet है and in this position if I am getting in जो मैं machining करता हूँ, turning करता हूँ मान लीजिए, तो this complete surface will come in contact with this shaft. Okay, because at the end we have to give some feed. When we will give the feed, this complete surface will come in contact with this shaft, and once it will start rotating, okay, it will start rotating this surface, over this surface, this diameter surface, that will remove the material. Now removal of the material can be possible here from both the sides, from the tool side as well as from the workpiece. What is the reason for that? Because now this is not a cutting edge, दिस इज अ सरफेस. ओके, अगर मान लीजिए कि घर में आपको सब्जी भी काटनी होती है, देन वेजिटेबल्स अगर कट करना है, देन यू आर यूजिंग द कटर्स, मींस आपको चाकू यूज करना पड़ता है. ठीक है, बट सो दिस इज द मटेरियल. अगर ये आपकी सरफेस होगी, देन डेफिनेटली देयर विल बी अ मटेरियल फ्रॉम द टूल साइड एज वेल, एंड that is not counted as a that is not counted as a that we have done some good. That is basically the loss of the material. Okay, and we are unnecessarily paying for that. So what we have to do is we have to create a edge, cutting edge on this tool. Now कटिंग एज जो है, जब आप सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की ज्योमेट्री देखेंगे तो उसमें दो साइड होती है. उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि मान लीजिए कि अगेन सिंपल एग्जांपल, टर्निंग एंड फेसिंग, कि मान लीजिए कि जब टर्निंग करनी है, देन वी आर कीपिंग दिस टूल लाइक दिस एंड वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन. ओके, सो दिस इज द टर्निंग, मींस आपकी ये वाली जो साइड है, मुझे यहाँ पे अगर मान लीजिए कि मेरा टूल इधर इस साइड में है एंड आई एम कीपिंग दिस टूल लाइक दिस, देन डेफिनेटली दिस सरफेस शुड हैव द कटिंग एज. ओके, एंड इफ आई एम गोइंग फॉर द फेसिंग, तो क्या कर सकता हूँ, या तो मैं इस टूल को अगेन मैं इधर से रोटेट कर सकता हूँ और इधर मूव करा लूं. बट क्या होता है कि automatically there is no need to change the geometry of whatever the geometry that we have set of this cutting point tool. So what we are doing is we are moving in this direction. So when we are moving in this direction, we'll remove the material from the from this face, and facing can be done. Okay, now again in this side also there is a face is there, sorry, face or surface is there. Okay, so again we need a edge over there, because if we have to remove the material, then surface is not required but the edge is required. Okay, now देखिए those who are doing this exercise along with me, आप क्या करिए कि लाइक इफ आई एम यूजिंग दिस साइड, कि आपका इस साइड में इस तरह से मटेरियल मुझे रिमूव करना है. सो व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू टेक हियर सम पॉइंट. ओके, यहाँ मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ एंड इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में कुछ मटेरियल रिमूव करता हूँ. ठीक है, बिकॉज व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू मेक दिस I have to make this cutting edge in this side, so that's why I am removing the material. Okay, similarly मैं क्या करता हूँ कि आपका यहाँ से एंड साइड में भी मुझे कटिंग एज बनाना है, तो मैं इस साइड में इस तरह से ज्योमेट्री, इस तरह से मटेरियल रिमूव कर देता हूँ. ठीक है, नाउ जो मटेरियल रिमूव कर रहा हूँ मैंने, ये अगर आपका मार्क किया है दिस मार्क, तो थ्रू आउट मैं कटर को यहाँ पे रख रहा हूँ. दिस कटर, देखिए कटर भी लेके आया हूँ मैं. ठीक है, तो दिस कटर आई एम कीपिंग ओवर हियर एंड आई एम रिमूविंग द मटेरियल लाइक दिस, एंड सिमिलरली इन दिस साइड आल्सो. ओके, तो थ्रू आउट मैं मटेरियल को रिमूव कर रहा हूँ. बट इससे पहले जो दो फिगर है मैं वो बता देता हूँ आपको. देखिए जो बिलेट हम यूज कर रहे हैं ये वाला, ठीक है, उसकी ये ज्योमेट्री है आपकी. ठीक है, उसकी ये 3D ज्योमेट्री है. नाउ यू आर लुकिंग दिस, आप इसको इस साइड से देख रहे हैं. ठीक है, नाउ दिस साइड, सो दिस इज बेसिकली द फ्रंट साइड. सो व्हेन यू विल सी इन द फ्रंट साइड, दिस विल बी लुक्स लाइक दिस वन. ओके, ठीक है, आप इस तरह से है, और नाउ व्हेन यू विल सी द फ्रंट साइड, दिस विल लुक्स लाइक दिस. ओके, एक रेक्टेंगुलर दिखेगा. सो दिस इज द, now what we are doing is first of all we are removing the material of this one, which is
this one which is the side and this is the end. Okay, तो ये जो मटेरियल है बेसिकली मान लीजिए कि ये इस तरह से रिमूव किया है कि ये मैं जैसे मैंने यहाँ पे इसके ऊपर भी कट लगाया है साइड में, इसको मैं साइड पोर्शन कह रहा हूँ एंड इसको मैं एंड पोर्शन कह रहा हूँ। ठीक है, बाय द वे मैं इधर से भी मटेरियल रिमूव कर सकता हूँ कि इसको साइड कंसीडर कर सकता हूँ, बट एज आई सेड दैट वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन ओनली जब हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बना लेंगे तो। ठीक है, तो एंड पोर्शन है आपका, तो एंड पोर्शन में भी मैं क्या कर रहा हूँ कि इस साइड में मटेरियल को रिमूव कर रहा हूँ। मटेरियल रिमूव करने का मतलब क्या है कि जो अगर मैंने यहाँ पे लाइन बनाई है तो इससे नीचे थ्रू आउट द थिकनेस जो मटेरियल है दैट आई एम रिमूविंग। ओके, तो ये वाला जो मटेरियल है ये मटेरियल पूरा आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, साइड के केस में, और एंड के केस में क्या होगा, ये वाला पूरा मटेरियल आपका यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन हुआ, दिस मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम साइड कंप्लीटली एंड नाउ दिस मटेरियल इज आल्सो रिमूव्ड फ्रॉम द एंड साइड। तो अगर मान लीजिए कि टूल से मैं टूल बना रहा हूँ एंड दैट टाइम दिस मटेरियल विल बी, अगर मुझे रिमूव करना हुआ सो दिस विल बी लाइक, मैं कट कर लेता हूँ। ठीक है, नाउ देखिए मैंने इसको कट कर लिया है। सो दिस इज बेसिकली योर साइड एंड दिस इज योर एंड। नाउ देखिए ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। ठीक है, देखिए नाउ दिस इज अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। अब मुझे वो मत पूछिएगा क्योंकि अब नाउ दैट हैज बीन रिमूव्ड। ओके, तो now this is single point cutting tool and you are keeping holding this like this. Okay, so now when you will move in this direction for the turning purpose, again the complete surface is coming in contact. Okay, now you can see, because whatever the material that you have removed from here, that has basically the constant cross sectional area. Okay, जो cross section आपने ऊपर choose किया है that has a throughout the thickness constant cross sectional area. तो इसका मतलब क्या है, now this will not be the edge come in contact, the complete surface will come in contact again. Similarly, अगर मान लीजिए कि मैं end की बात करता हूँ this portion की, so again this portion which is a complete surface, that the complete surface is coming in contact. इसका मतलब क्या होगा कि मेरा जो मटेरियल रिमूव किया उसका कोई मतलब ही नहीं निकला। नहीं, मतलब तो निकला है, बट what we have to do is हमें इसी को एज बनाना था, हमें यहाँ पे बेसिकली एज बनाना है। अब इसको एज बनाना है और ये पूरी एक सरफेस है, इंक्लाइन सरफेस हो गई। अब ये पहले क्या थी, स्ट्रेट थी, अभी इंक्लाइन सरफेस हो गई। तो अब इस इंक्लाइन सरफेस से मुझे सिर्फ एज बनानी है, ये वाली है। ये मान लीजिए कि ये टॉप व्यू रहेगा और बैक साइड वाला जो मेरा साइड वाला है वो मतलब बॉटम में रहेगा। ठीक है, इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो ये वाली जो एज है इसको क्या करना है कि मुझे एज बनाना है। ठीक है, ये वाली जो पोर्शन है ऊपर वाला, तो इसका मतलब क्या है कि नीचे से अंदर की साइड में मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ मटेरियल को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, और सिमिलरली अगर ये मेरी एंड साइड है तो एंड साइड में भी क्या करना पड़ेगा कि मान लीजिए कि अगर मैं इसको एज मान लेता हूं बिकॉज दिस इज द टॉप साइड, तो इसके बिलो जो कुछ मटेरियल है लाइक अप टू दिस वन, मान लीजिए कि कुछ अप टू बैक साइड। ठीक है, ये बैक साइड कुछ, तो ये मटेरियल रिमूव करना पड़ेगा इसको एज मानते हुए। ठीक है, अगर मैं इसको एज मानते हुए करता हूं, देखिए नाउ दिस इज दिस 3 डायमेंशनल बॉडी। ओके, नाउ दिस इज द 3 डायमेंशनल बॉडी, और अब एक्चुअल में देखिए जब इसको इस पोजीशन में आप देखेंगे सो इट विल लुक्स लाइक दिस। ठीक है, ये आपका फ्रंट साइड हो गया, दिस इज योर फ्रंट साइड। ओके, और ये आपका बैक साइड हो गया, मतलब ये वाला आपका साइड वाला पोर्शन हो गया, ये आपका एंड वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, दिस इज यू आर कीपिंग दिस लाइक दिस। ओके, now this is the top side, this is the bottom side. Okay, and this is view. Now ठीक है, यहीं पे इसको करते हैं। Now what we are doing is I am removing the material which is below this surface as well as below this surface. ठीक है, देखिए मैंने एंड वाले पोर्शन को पहले रिमूव करने की कोशिश की है इसको एज मानते हुए। ठीक है, इसको एज मानते हुए मटेरियल रिमूव किया है, तो देखिए ठीक है, नाउ अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये वापस में ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, नाउ यू कैन सी सिमिलर things, now you can see that when we are going for the machining purpose of the facing purpose, now this cutting edge is only coming in contact. ठीक है, अब edge देखिए मैं exactly यहाँ से बता नहीं पा रहा हूँ आपको, but now this edge, because below side of that material is completely removed. Okay, so now this edge will only come in contact with this material. Okay, and now we can go for the machining purpose now because there is only the edge is there. तो ये तो हो गया end वाला portion. Now here, हाँ ये तो हो गया आपका एंड वाला पोर्शन। ठीक है, सॉरी आप ऐसे देख रहे थे ना, सॉरी दिस इज माय साइड, ठीक।
तो ये आपकी साइड है, दिस इज, तो ये हो गया आपका साइड वाला पोर्शन। नाउ एंड वाले पोर्शन में भी सेम करना है, सो वी आर रिमूविंग द मटेरियल लाइक दिस। ठीक है, इसमें भी मैंने कट लगाया है, सो दिस विल बी लाइक, देखिए एंड इस दिस विल बी लाइक दिस। देखिए आप जब इस मटेरियल जो मैं रिमूव कर रहा हूँ ना, उसमें अगर एक बात देखेंगे आप, सो व्हाट इज दैट कि यहाँ पे इसकी जो थिकनेस है, यहाँ पे इसकी जो थिकनेस है वो बहुत कम है, और जो बॉटम पोर्शन है ये वाला आपका, ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसमें थिकनेस ज्यादा है। बिकॉज दैट्स व्हाई आई सेड कि अगर मान लीजिएगा आप कांस्टेंट रखेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया ऊपर से लेके नीचे तक, तो आपका एक नया सरफेस जनरेट हो जाएगा, एक एज नहीं बनेगा। ठीक है, हमें क्या करना है कि एक एज बनाना है, तो एज बनाना है तो हमने क्या है, ऊपर स्मॉल अमाउंट थिकनेस चूज की है, नीचे हमने लार्ज साइज उसको इंक्रीज किया है क्रॉस सेक्शनल एरिया को। तो जब आप रिमूव करेंगे दिस विल बी लाइक दिस, ओके, from the front side. So now this will become the your single point cutting tool, but still now when you will now this is single point cutting tool only, because now you can say that when you will move in this direction, now you can go for the cutting purpose, now in this direction also you can go for the cutting purpose। ठीक है, देखिए अब जो नेक्स्ट एंगल है that is rake face। आपका ये वाला जो पोर्शन होता है, दिस पोर्शन अपर पोर्शन जो होता है, we call this as a rake face। okay, now what will happen that कि आप जब मशीनिंग करेंगे, that when the machining will be there, the material will remove in the chip form of chips। now chips has a high temperature, okay, because that is coming out through the basically shear action है, because of the shear deformation the material is coming out। and जब आपका normal जो आपके ब्रिटल मटेरियल्स होते हैं, लाइक सिंपल सा अगर वुड वगैरह की भी बात करें, प्लास्टिक्स वगैरह की बात करें, सो व्हेन देयर विल बी अ ब्रेकेज, obviously the temperature rise is there। तो ये तो क्या है, आपका मेटल है, तो नो डाउट व्हेन द मेटल इज डिफॉर्म डेफिनेटली इट हैज अ वेरी हाई टेम्परेचर। तो जो चिप्स हैं, अगर दैट इज फॉलिंग ओवर द सरफेस ऑफ दिस टूल फेस, रेक फेस स्पेशली, तो यहाँ पे क्या है, जब आपकी चिप्स आएंगी दे विल मूव रैंडम इन डायरेक्शन। okay, now they will move random in direction, so what we have to do is, agar random in direction they will flow random over the rake face, then they have a very high temperature। so if they have a high temperature, then there will be a hardening, there's a possibility is there, or they will change the properties of the tool face। okay, so what we have to do is, हम चाहते हैं कि like they should collect somewhere। okay, we should collect somewhere, or we should provide a direction to that, so that all the chips will flow in a particular direction। so what we are doing is okay, ये साइड थी आपकी। so when you will see from front side, देखिए ये वाला जो एंगल, ये वाला जो आपका टूल है, sorry, this ये इमेज जो है, this is basically the rake face। okay, and now what we are doing is, I am just giving a direction so that all the chips is flow in this direction। ठीक है, okay, now this is the rake face। so what we are doing is, I am just cutting from this side, मतलब इसको मैं point मान लेता हूँ, और ये वाली जो फेस है इसकी, ये वाली फेस, ठीक है, इस फेस पे मैं इस तरह का एक लाइन बना लेता हूँ। ठीक है, देखिए एक्चुअली तो लाइन बना नहीं सकते, बट इसमें मैं बना सकता हूँ, वो मैं बता देता हूँ आपको कि नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज, वी आर कीपिंग दिस कटर ओवर हियर एंड वी आर मूविंग इंक्लाइंड। ठीक है, इंक्लाइन मूव करेंगे तो आपका दोनों साइड से मूव होगा, तो ये जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द मटेरियल है, दैट मटेरियल वी आर रिमूविंग। ओके, व्हेन दिस विल रिमूव, दिस विल लुक्स लाइक दिस, मतलब आप जब फ्रंट साइड से देखेंगे तो ये आपको इंक्लाइन दिखेगा इस तरह से। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे आपका कटर रख रहा हूँ एंड आई एम मूविंग दिस डायरेक्शन, मतलब पीछे की डायरेक्शन में थोड़ा इंक्लाइन कट कर रहा हूँ। सो व्हेन यू विल गो लाइक दिस, ओके, देखिए ये वाला आपका पोर्शन था। नाउ वी आर कीपिंग लाइक दिस, एंड देखिए ये फ्रंट साइड से है, आई एम जस्ट पिकिंग दिस वन। ओके, एंड दिस मटेरियल इज रिमूव। देखिए आप इसको देखिए, दिस साइड, दिस ये आपका फ्रंट टूल पॉइंट था। ठीक है, टूल पॉइंट मतलब आपका ये वाला पॉइंट था यहाँ पे, दिस इज योर पॉइंट,
दिस इज योर पॉइंट एंड दिस साइड, इस साइड में जो है this is like this surface, okay, this surface. Now when you will remove this one, this portion will come out, okay. Now this tool will be looks like this, okay. So this is nothing but when you will take this one, okay. So ये जो एंगल आपको दिख रहा है, ये जो एंगल आपका यहाँ पे बन रहा है with respect to the horizontal जो इस सरफेस से बन रहा है, this is nothing but this is a back rack angle, okay. So देखिए एंगल भी डिफाइन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए आपने ये वाला जो एंगल बनाया था दैट इज फॉर द कटिंग एज बनाया था, सो दिस इज नथिंग बट दिस इज द CS, आपका साइड कटिंग एज एंगल है, ये आपने एंड एंगल एंड एज कंसीडर की थी, सो दिस इज नथिंग बट दिस इज CE, दैट इज अ एंड कटिंग एज एंगल, ठीक है। नाउ दिस ओके, देखिए इसमें आपको दो एंगल नहीं दिखेंगे, उसके लिए मैं ट्राई करूंगा अदर फिगर के लिए। दिस इज गामा एस दैट इज क्लियरेंस, साइड क्लियरेंस एंगल, एंड गामा ई दैट इज एंड क्लियरेंस एंगल, ठीक है। एंड क्लियरेंस एंगल अभी मैं दिखा देता हूं आपको। साइड क्लियरेंस के लिए हमें 3 डायमेंशनल में जाना पड़ेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, सो दैट लाइक देखिए जब आपने ये वाला अभी नाउ दिस मटेरियल इज रिमूव्ड, सो व्हेन यू विल मेक दिस हॉरिजॉन्टल पोर्शन, okay, now this angle will be visible, so this angle is nothing but it's a back rack angle, okay. So this is angle in this position, this angle when you will take means we have cutted this material, okay, and when you will take the horizontal from this from the horizontal, this angle we call this as a back rack angle, so this is the alpha B, okay. Now it means that now the chip which is coming out, that will first move over this surface, and पहले क्या होगा कि यहाँ पे आपकी टूल चिप्स आएंगी, यहाँ पे आपकी टूल चिप्स आएंगी एंड दे विल मूव इन दिस डायरेक्शन, ओके। बैक साइड में जो है यहाँ पे आके इकट्ठी हो जाएगी। लाइक अगेन आई एम सेइंग दैट आपका इंटेंशन क्या था कि they should collect at some point and that should be removed. Now collect तो हो रही है but that cannot be removed because again a high temperature. Now आपकी सारी जो चिप्स है वो यहाँ पे आती जाएगी, ठीक है। अगर सारी यहाँ पे आती जा रही है because of high temperature that is flowing over this surface, by the way this is the free motion, ठीक है। So they will stick and again there may be chances that they will start making a bonding and over this surface, okay, and they can, there is a possibility that they can weld itself or diffuse itself, okay, by the diffusion bonding. So what we have to do is we do not want again that this material should deposit over here on or should ये जो है material पे ही इकट्ठा हो जाए, हम नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं कि again ये material जो ये जो chips हैं that is coming in this side, they will also easily come out from this material. Now there is a two possibilities that when we are moving in this direction, okay, when the chips is coming in this direction, now what we can do is either we can make this edge as this, we can keep this edge and we can remove the material like this from this rake face, or what we can do is if we are moving in this direction, okay, so we can keep this one as a edge and we can remove the material in this direction. So what will happen, because of that whatever the chip will come over this surface, over the rake face, that will easily come out in this direction with मतलब जैसे जैसे आपका टूल इधर मूव होता जाएगा automatically the chip will come out from this side, okay. So what we are doing is so okay, ये आपका जब आप इस साइड से देखेंगे, so this will be the back rack angle, this is the back rack angle, and like this portion, ये जो आपका पोर्शन है इस साइड में, ठीक है, साइड वाला पोर्शन है ये वाला, तो आप इसके नीचे से जब मटेरियल रिमूव करेंगे, ठीक है, जैसा आपका आप क्लियरेंस प्रोवाइड करेंगे या फिर एक रिलीफ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, बिकॉज व्हाट देयर वाज इट वाज कंप्लीटली अ एज, तो आप इधर से मटेरियल रिमूव करेंगे तो देखिए फ्रंट साइड से अगर आप देख रहे हैं तो आपको साइड वाला एंगल नहीं दिखेगा, लेकिन जो बैक साइड में था आपका ये वाला जो पोर्शन था, इसके नीचे जो मटेरियल आपने रिमूव किया था, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन इसके नीचे से रिमूव किया था, that when you will see this one from the end side, this will looks like this angle, okay, ये एंगल आपको दिख जाएगा, and this angle was the alpha B, that is a rake angle, and this angle is nothing but it's a and clearance angle, okay, and relief angle भी हम उसको बोलते हैं because surface contact में आ रही थी। Now that surface is not coming, only a edge is coming. Surface had a problem, so that we have provided the relief to that, okay, so that is nothing but a relief angle or a clearance angle, ठीक है। तो आई थिंक देखिए CS आपको क्लियर हो गया, CE क्लियर हो गया, गामा E क्लियर हो गया, अल्फा B क्लियर हो गया। नाउ टू एंगल्स आर रिमेनिंग, सो ओके,
for the two angle, as I said, as I was discussing over here, कि हम लोग क्या करते हैं इसको edge मानते हुए, आपका इस portion को edge मानते हुए, we are just taking inclined portion toward this side. Okay, so towards this side when you will take, देखिए थोड़ा स्मॉल हो गया है, so there will be a problem. देखिए when you are taking this one as a side, this one as a side, and इस साइड में आप इसको रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, इस साइड में आप रिमूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन से. देखिए जब आप इसको रिमूव करेंगे, so this will be like that. Okay, so इसका मतलब क्या है, आप इसको आप ये inclined portion देख पा रहे हैं, like देखिएगा this inclined portion. Now chip, whatever the chip will come over this surface in back side, they will flow in this direction. Means आपका जब सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगा, that time whatever the chip will come out, that will transfer over the rake face, back side that will come and they will move in this direction. Okay, क्योंकि आपका डायरेक्शन ये है, तो इस डायरेक्शन में अगर फ्लो हो तो that's good for you. Okay, तो हमने क्या किया है इस पोजीशन में, इस पोजीशन में देखिए यहाँ पे जो ये हाइट है और यहाँ पे जो हाइट है थोड़े ज्यादा है इस बैक साइड में, तो इसका मतलब क्या किया है कि हमने इसको थोड़ा एंगल प्रोवाइड कर दिया है. ठीक है, नाउ दिस एंगल विल नॉट बी विजिबल फ्रॉम दिस साइड. ओके, आप बैक साइड से देखेंगे तब भी वो एंगल नहीं दिखेगा, क्योंकि दिस इज आल्सो अ सरफेस एंड दिस इज आल्सो अ सरफेस. ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आप इस डायरेक्शन से जब देखेंगे, then this portion, because this is a large size, okay, इसके पीछे का inclination है तो वो दिखेगा नहीं. Now when you will go to this side again, this edge will come in front, so what you have to do is you have to move in a third quadrant. Okay, तो ये पहले ही एक ऐसा एग्जांपल है, मतलब एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जिसमें आपको जिन स्टूडेंट्स को लाइक फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट कभी समझ में नहीं आता है, so they can easily understand. Now अगर मैं इसको कट कर देता हूँ, ठीक है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि बेसिकली आई एम जस्ट टेकिंग अ क्रॉस सेक्शन. मींस अगर मैं इसको थर्ड क्वाड्रेंट में जाके देखता हूँ तो मैं इधर से देखूंगा, या फिर मान लीजिए मैं इसके सेक्शनिंग कर देता हूँ. सेक्शनिंग करने के लिए क्या करता हूँ कि इसको यहाँ से कट कर देता हूँ. ठीक है, अगर इसको कट कर दूंगा तो ये जो क्रॉस सेक्शन आपका दिखेगा, थ्रू दिस बेसिकली यू कैन गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट द एंगल इज रिमेनिंग, दैट इज अल्फा एस एंड गामा एस, दैट इज साइड रेक एंगल एंड साइड क्लीयरेंस एंगल. ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको देखिए कट कर रहा हूँ यहाँ से. ठीक है, तो इसके बाद मैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल आपको बता नहीं सकता हूँ इसमें. ठीक है, देखिए मैंने इसको कट कर दिया है. नाउ आई एम गोइंग फॉर द सेक्शनिंग पॉइंट. ठीक है, तो इसको जब मैंने कट किया है, दिस विल बी लुक्स लाइक. ठीक है, ये आपका फ्रंट में इस तरह से दिखेगा. तो अब क्या है कि देखिए ये जो साइड थी आपकी, ये वाली जो साइड थी, सॉरी, देखिए ये वाली जो साइड थी आपकी, बेसिकली ये आपका साइड क्लियरेंस है प्रोवाइड यहाँ पे किया था. ठीक है, तो नाउ यू कैन सी दिस एंगल इज देयर. यहाँ पे एंगल देखिए आप. ठीक है, ये एंगल जो है दिस इज नथिंग बट दिस इज अ साइड क्लियरेंस एंगल, दैट इज गामा एस. ठीक है, नाउ आई एम होल्डिंग लाइक दिस. ओके, एंड सॉरी दिस इज वेरी स्मॉल. नाउ हॉरिजॉन्टल के साथ देखिएगा. आई डोंट नो whether it's visible or not. I'm trying to get you. So this is basically the with respect to the horizontal, ये जो एंगल है आपका, this is अल्फा एस, so that is a back rack angle. ठीक है, तो देखिए अब थर्ड क्वाड्रेंट में दिया है, so like देखिए जब आप इस एंगल को देखेंगे, ठीक है, this angle from this side, this is gamma s, so this is side clearance angle, and जब आप इस एंगल को देखेंगे, this is alpha s, so this is side rack angle. ठीक है, तो ये आपके देखिए 6 एंगल हो गए. ठीक है, अब मैं इसको 2D में बना देता हूं जल्दी से. ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम. हम देखिए अगेन मैं आप इसके व्यूज देख रहे हैं, आप बस ये देखिएगा कि आप फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यूज देखना चाह रहे हैं. ठीक है, देखिए जब आप फ्रंट व्यू देखेंगे, देखिए जब आप फ्रंट व्यू देखेंगे तो ये एंगल टूल जो है ये इस तरह से कुछ दिखेगा. हालांकि हमने देखिए यहाँ पे क्या किया था कि इस तरह से कट किया था, तो क्योंकि हमारे पास रबर था एंड इट वाज वेरी स्मॉल, दैट्स व्हाई. ओके, एंड कटर वाज आल्सो नॉट दैट मच शार्प. तो अगर मान लीजिए कि कर्व बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, बट अदरवाइज ये पोर्शन भी बना सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है, तो दिस पोर्शन, ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया इस फिगर में,
इस फिगर में दिस एंगल वाज अल्फा बी दैट इज अ बैक रैक एंगल एंड दिस एंगल इज नथिंग बट क्योंकि आपकी एंड क्लियरेंस थी यहाँ पे एंड सरफेस थी so this angle with respect to this end side okay so this will end plane this will be the end clearance angle so this is alpha b that is the back rack angle this is gamma s sorry gamma e ठीक है जब आपने when you will okay जब आपने ये वाला सेक्शन देखा like from this third quadrant तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट जब आप बनाते हैं तो आपको बुक्स ये बेसिकली मैं इसको थर्ड क्वाड्रेंट या फिर सेक्शनिंग क्यों कह रहा हूँ क्योंकि जब आप बुक में किसी भी बुक्स में कोई भी अच्छी सी स्टैंडर्ड वाली बुक उठा लीजिए जब आप उसमें देखेंगे तो यहाँ पे इस फिगर के लिए इसमें सेक्शनिंग किया रहता है ठीक है इसमें सेक्शनिंग करने का क्यों मतलब है आई थिंक आज आपको समझ में आ गया होगा ठीक है सो दिस एंगल इज नथिंग बट इट्स अल्फा एस दैट इज गामा एस एंड दिस इज साइड क्लियरेंस एंगल सो दिस इज गामा एस सॉरी दिस इज अल्फा एस बैक साइड रेक एंगल देन दिस इज गामा एस दैट इज साइड क्लियरेंस एंगल ठीक है अब आपके दो एंगल और बचते हैं दो एंगल के लिए नाउ you can see this from the top view so when you will see from the top view this is the side okay और ये आपका end portion है so this will be the end clearance angle sorry end cutting edge angle and this will be the side cutting edge angle so this is CS now मैं एक बार repeat कर देता हूँ alpha B is basically the back rack angle ठीक है बैक रैक एंगल अल्फा एस इज द साइड रैक एंगल ठीक है गामा एस इज द गामा ई कर लीजिए गामा ई इज द बेसिकली द एंड क्लियरेंस एंगल और रिलीफ एंगल भी कह सकते हैं ठीक है अब आपको समझ में आ गया रिलीफ और क्लियरेंस का क्या मतलब है क्लियरेंस जस्ट वी आर प्रोवाइडिंग और रिलीफ इज जस्ट वी आर प्रोटेक्टिंग द सरफेस टू रिमूवल ऑफ द मटेरियल ओके क्लियरेंस फॉर दैट ओनली वी आर प्रोवाइडिंग and gamma s is nothing but it's a side clearance angle ठीक है CE that is the end cutting edge angle end cutting edge क्योंकि हम लोग cutting edge बना रहे हैं so this is end cutting edge angle ठीक है and this is CS next is CS so this is side cutting edge angle ठीक है now इसके अलावा इसमें हम लोग क्या होता है ये जो पॉइंट रहता है ना वो तो टूट गया ये वाला जो पॉइंट रहता है देखिए ये वाले पॉइंट्स पे क्या करते हैं हम लोग बेसिकली दिस पॉइंट इज वेरी शार्प and obviously the material strength of this material is very high so if this point is very sharp then when you will bring the contact of this with the workpiece then when the workpiece will start rotating this point जो कि एक point है छोटा सा that will rub very easily ठीक है तो easily अगर rub होगा then it's our fault only that the surface smoothness that will not be good for in the workpiece so what we are doing is we are just making a curve over here ठीक है अगर हम यहाँ पे कर्व बना देंगे so this point will be looks like this okay तो इसको क्या ये जो कर्व होता है हम इसको बोलते हैं nose radius ठीक है now this is all about in the 2D image okay I think it's clear to you guys okay अपनी synopsis अगर आप बना रहे हैं तो ये वाले figures please 2D वाले बना लीजिएगा now थोड़ा सा मैं आपको अपनी SolidWorks images जो मैंने बनाई थी specially for this लेक्चर तो उससे भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ देखिए ये आपका इनिशियली आपका एक बिलेट था ठीक है इस बिलेट के इस सेक्शन के ऊपर हम लोग सेक्शनिंग कर रहे हैं मतलब सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बना रहे हैं सो दिस इज बेसिकली द साइड वी चूजन ओके सो ये हमने मटेरियल रिमूव कर लिया यहाँ से and this is the end side we chosen so in this side also we have removed the material now for the end side first we are taking this edge and मतलब नीचे की साइड में बॉटम साइड में हम लोग इतना ले रहे हैं एंड ऊपर साइड में यहीं से है सो दिस मटेरियल वी आर रिमूविंग सो यू कैन सी दिस वन okay and similarly we are doing in the side as well so we are keeping this as a cutting edge and we are taking this portion okay so ये वाला जो portion है आपका ये मटेरियल हम लोग रिमूव कर रहे हैं so when you will see from this side this you will see this there is a clearance is there okay now जब आप दोनों ये एंगल बना लेते हैं this clearance and clearance angle and the side clearance angle there you will see a little bit angle is there okay हालांकि इसमें आपको नहीं दिखेगा वो ठीक है वो मैंने आपको एक्चुअल में बता भी दिया है कि एंड जब आप एंड पोर्शन से मेजर करेंगे दिस विल बी द एंड क्लियरेंस एंगल and this angle is nothing but this is alpha b that is a back rack angle okay now we want this whatever the chip is flowing in this direction that should also come out from this rack face very easily so for that basically nothing but we are taking inclined portion in that direction back side of it so there's a this thickness there's a difference in this height so because of that the material we have removed okay and this is the overall view of this 3D
image of this single point cutting tool. Okay, so I think this single point geometry is clear to you guys from my side. Okay, now एक छोटा सा टॉपिक हो रहा है, ओके, ज्यादा नहीं है। देखिए टूल सिग्नेचर का क्या मतलब है कि देखिए बाय द वे देयर आर टूल सिग्नेचर का पहले मतलब समझा देता हूँ। टूल सिग्नेचर का मतलब ये है कि देखिए दो तरीके से समझाता हूँ। पहले तो क्या है, जब हम आप लोग बाई करने जाते हैं, या फिर आप लोग नहीं, जो इंडस्ट्रीज, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, लाइक बड़ी इंडस्ट्रीज होगी, बीएचईएल होगी, तो व्हाट दे आर डूइंग इज व्हेन लाइक अगर कोई छोटी मोटी इंडस्ट्रीज हैं तो उनके लिए कोई जो टूल्स बना रही है कंपनी, वो उनके लिए कोई सेपरेट टूल्स नहीं बनाती है, ठीक है, जो मार्केट में अवेलेबल है उनको अकॉर्डिंगली दैट दे हैव टू मैनेज। बट जो बड़ी कंपनीज हैं, दोज हु आर मैन्युफैक्चरिंग लार्ज साइज शाफ्ट्स, ओके, दोज हु आर मेकिंग दिस लार्ज साइज शाफ्ट और रोटर शाफ्ट वी कैन से, तो उन लोगों की रिक्वायरमेंट्स ज्यादा है, सो दैट दे कैन एक्सेस व्हाटएवर द रिक्वायरमेंट्स दे वांट। तो क्या होता है कि बेसिकली व्हेन दे आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर अ लार्ज साइज शाफ्ट दैट टाइम एंड फॉर द डिफरेंट मटेरियल्स, ओके, so they will see the actual problems, and on the basis of that they design their own different angles of the tool. Okay, now different angles जब वो decide करते हैं, तो जो tool signature होता है, tool signature will define that how much angle, how many angles are there and what these angles define actually means। मान लीजिए कि आपका अल्फा बी है, अल्फा एस है, जो हमने 6 एंगल्स देखे हैं, इसके अलावा एक नोज रेडियस देखी है, इसी का बेसिकली क्या है, टूल सिग्नेचर एक तरह का सीक्वेंस है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि आपको एक सीक्वेंस लिख के देना होता है कि फॉर दिस मटेरियल वी वांट दिस टूल सिग्नेचर, के आपका क्लीयरेंस एंगल इतना होगा, रेक एंगल इतना होगा, ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट बेसिकली, ठीक है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द टूल सिग्नेचर। इसमें से हम 2 तरह की बात कर लेते हैं। फर्स्ट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन, ठीक है, इसको एएसए शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, एएसए सिस्टम। सेकंड है आपका ओआरएस सिस्टम, दैट इज ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम, इसको हम ओआरएस भी बोलते हैं, ठीक है। एंड तीसरा जो है दैट इज नॉर्मल रेक सिस्टम, इसका कोई मतलब नहीं है, कहीं पे यूज नहीं आता, क्योंकि एक तरह का पूरा कॉपी है ओआरएस का, ठीक है। तो हम इन दोनों को देख लेते हैं, ठीक है, अमेरिकन एएसए एंड ओआरएस। देखिए मैं पहले इसका एएसए का लिख देता हूं, देन मैं आपको समझा देता हूं। हालांकि ये तो मैंने समझा ही दिया है आपको, इसमें कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें टर्म्स क्या होती हैं और आपका फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट मींस व्हाट इन व्हिच ऑर्डर द टूल एंगल्स आर वेरिंग। सो फर्स्ट इज द बैक रैक एंगल, दैट इज अल्फा बी। नेक्स्ट इज द साइड रैक एंगल, दैट इज अल्फा एस। Next is the end clearance angle, then it's a gamma s side clearance angle, then it's a end cutting edge angle, then it's a CS, that is side cutting edge angle, and next is the R, that is nose radius, ठीक है। Now these all 6 are basically the angles, so that is measured in the degree, okay, and this is nothing but this a nose radius, so nose radius is basically measured in the mm or inches, ओके। बहुत सारी बुक्स में आपको इंचेस मिलेंगी और फॉरेन बुक्स में आपको इंचेस में मिल जाएगा और इंडियन बुक्स में आपको एमएम में मिल जाएगा, ठीक है। सो देयर इज नो नीड टू कंफ्यूज कि आपका नोज रेडियस भी डिग्री में होगा कि नहीं होगा। सो दीज आर बेसिकली द 7 पैरामीटर्स व्हिच इज रिक्वायर्ड टू डिफाइन द टूल सिग्नेचर। प्लीज कीप इन माइंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड प्रीवियसली इन द इंजीनियरिंग सर्विसेज एज वेल एज मेनी पीएसयूज, ठीक है। तो लेवल उनका उस हिसाब का है, तो इस वजह से दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दैट यू शुड आल्सो गो थ्रू इट, ओके। 7 पैरामीटर्स हैं जिसमें से 6 एंगल्स हैं, 1 नोज रेडियस है, ठीक है। नाउ ओआरएस की बात करते हैं। देखिए मैं अभी आपको एक इसको मैं थोड़ा दूसरे वे में भी समझाता हूं। मेरे पास 2 इमेजेस हैं, सेपरेट इमेजेस हैं। पहले मैं ओआरएस का डायमेंशन लिख लेता हूं, ठीक है। ORS is basically defined as orthogonal rake system. So I, that is inclination angle, alpha O, that is orthogonal rake angle, then it's gamma O, that is orthogonal clearance angle, then it's gamma A, that is auxiliary clearance angle, then it's CA, that is auxiliary cutting edge angle, then it's lambda, which is a principal cutting edge angle, or we also call it as a approach angle, and this R, which is again a nose radius. Again the same thing, all 6 angles are measured in the degree and this nose radius is measured in mm or inches। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको लिख भी देता हूँ क्योंकि those who are looking first time, watching first time, they can also have an idea that I is nothing but it's an inclination angle। मैं बताता हूँ आपको होता क्या है, डोंट वरी।
I is the inclination angle, alpha b is the orthogonal rake angle, gamma o is nothing but it's a orthogonal clearance angle, ठीक है. Gamma a is auxiliary clearance angle, CA that is the auxiliary cutting edge angle, lambda is nothing but is the approach angle, or we also can say it's a principal cutting edge angle, ठीक है. एंड आर इज नथिंग बट इट्स अ नोज रेडियस, ठीक है. नाउ देखिए ए से के लिए मैं जो यूज कर रहा हूँ दिस इमेज, ठीक है. देखिए ये अगेन मेरा सॉलिड वर्क्स का इमेज है, तो मैं उसी को बता देता हूँ. देखिए सॉलिड वर्क्स में क्या होता है, एक तो टॉप प्लेन होता है, फ्रंट प्लेन होता है और तो राइट प्लेन होता है. तो प्लीज इस नाम को भूल जाइएगा यहाँ पे. ये जो देखिए टॉप प्लेन है बेसिकली क्या है, अगर आपका ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, हालांकि ये रहा नहीं है बट ये जिस प्लेन में रखा हुआ है इस प्लेन को बोलते हैं हम लोग बेस प्लेन, ठीक है, फॉर एएसए सिस्टम. देखिए ये अगर इसका टूल शेंक है, ये वाला जो इसके साथ आगे पूरा कटिंग पोर्शन वाला पार्ट था और ये इसका टूल शेंक है, ठीक है. तो ये जो इसकी साइड है इसके पैरेलल जो प्लेन है दिस प्लेन वी आर कॉलिंग इट एज अ लॉन्गिट्यूडनल प्लेन, ठीक है. तो ये आपका ये आपका जो टॉप प्लेन है यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट दिस इज नॉट टॉप प्लेन, दिस इज बेसिकली द बेस प्लेन, ओके. एंड ये जो है आपका दिस इज व्हाट आई सेड, दिस इज अ ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है. और ये जो फ्रंट प्लेन है विच इज परपेंडिकुलर टू दिस ट्रांसवर्स प्लेन, सो दिस इज नथिंग बट दिस इज अ लॉन्गिट्यूडनल प्लेन. देखिए इसको चेंज भी कर सकते हैं, नाउ दैट डिपेंड्स बेसिकली कि आप लॉन्गिट्यूडनल किसको कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है. सो अगर बुक्स में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आपने इसको लॉन्गिट्यूडनल कंसीडर किया है कि बेसिकली दिस इज द एक्सिस, तो मान लीजिए कि बुक्स में इसको लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस लिखा होगा, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन लिखा होगा और परपेंडिकुलर टू दैट इसको ट्रांसफर प्लेन लिखा होगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. बाय द वे ऑल दीस एंगल्स आर एट प्लेन्स आर एट 90 डिग्री ओनली, ओके. सो देयर इज नो नीड टू वरी. तो देखिए इसमें मतलब मैं समझाना क्या चाह रहा था कि बेसिकली आपका जो ये एंगल्स हैं, ठीक है, आपने ये एंगल यहाँ पे लिखे हैं, दिस इज अल्फा बी, अल्फा एस, ठीक है. ये तो हालांकि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिए हैं, तो आप आराम से इस फिगर में आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं कि दिस इज आपका, ये आपका जैसे आपका ट्रांसफर प्लेन है, तो ये जो एंगल होगा दिस एंगल इज नथिंग बट इट्स सी एस विच इज कटिंग एज एंगल आपका. ये अगर आपका लॉन्गिट्यूडनल प्लेन है तो इसके साथ जो ये एंगल रहेगा दिस इज सी, दैट इज एंड कटिंग एज एंगल, ठीक है. अगर आप फ्रंट इधर से देखेंगे सो दिस एंगल विल बी बैक रैक एंगल, ठीक है. और आप जब इसका लाइक दीज एंगल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दिस ज्योमेट्री, ओके. दिस इस ज्योमेट्री, ये जो ज्योमेट्री है इस ज्योमेट्री में मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको. So ASA, for ASA there is no need, and for the ORS, like ORS के लिए क्या है, ORS के लिए क्या होता है कि देखिए ठीक है, this is the base plane, okay. So this is the base ना. ORS में क्या है कि देखिए ORS के लिए क्या है कि प्लेन्स थोड़े चेंज थे, ये प्लेन नहीं थे. ORS में डिफरेंस क्या है कि आपने क्या है कि बेसिकली आपकी पहले क्या था कि इसमें आपका ये ट्रांसफर प्लेन है, ठीक है. आपका एएसए सिस्टम में ये वाला आपका ट्रांसवर्स प्लेन है, टॉप प्लेन नहीं, ये बेस प्लेन है बेसिकली जिसमें आपका ये रखा हुआ है, एंड परपेंडिकुलर टू दैट दिस इज अ लॉन्गिट्यूडनल प्लेन, ठीक है. तो अब इसमें क्या किया है आपका ओआरएस सिस्टम में, अब आप जो मेजर करेंगे ना एंगल्स को, उसमें क्या कर दिया गया है कि आपने ये ट्रांसफर प्लेन था इसको इसी डायरेक्शन में ले लिया. नाउ पहले आपका ट्रांसफर प्लेन ये था, ठीक है, प्लीज देखिएगा. और एएसए सिस्टम में क्या था कि आपका ट्रांसफर प्लेन ये था और आप यहाँ से एंगल को मेजर कर रहे थे, बट अभी क्या किया है कि इस प्लेन को आपने यहाँ पे रोटेट कर दिया है, मतलब जो आपकी जिसमें कटिंग एज है आपने उस प्लेन ट्रांसफर प्लेन को वहां पे ला दिया है, ठीक है. नाउ प्लेन होगा, नेक्स्ट प्लेन जो होगा, थर्ड प्लेन जो है, बेस प्लेन तो है ही परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, थर्ड प्लेन जो होगा दैट विल बी ऑब्वियसली परपेंडिकुलर टू दैट, तो थर्ड प्लेन जो होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, ठीक है. अब ये जो प्लेन है आपका, इस प्लेन में आपकी कटिंग हो रही है, तो कटिंग हो रही है तो आपका वी कॉल दिस प्लेन एज अ कटिंग प्लेन,
कटिंग प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट इज परपेंडिकुलर टू दैट ऑर्थोगोनल है, दैट इज 90 डिग्री टू दिस, सो वी कॉल दिस एज द ऑर्थोगोनल प्लेन। वो सेम रहेगा तीसरा वाला, क्योंकि बेस है उसमें रखा हुआ है, सो देयर इज नो इश्यू इज देयर। ओके, सो ओके, ठीक है। तो दैट इज अ बेस प्लेन, दिस इज कटिंग प्लेन एंड दिस इज ऑर्थोगोनल प्लेन। नाउ व्हाटएवर द एंगल इज देयर वी आर मेजरिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस वन। नाउ देखिए, जो आपका ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल था, ठीक है, तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में जो ज्योमेट्री थी आपकी बेसिकली, नाउ इनिशियली इट वाज एएसए सिस्टम में क्या था, ये इस तरह से था, ठीक है। अब एएसए सिस्टम ओआरएस सिस्टम के लिए क्या किया आपने, कटिंग एज में आपने प्लेन डाल दिया। तो अब जो ये आपका सीएस था, नाउ अगर आपका सीएस चेंज हो चुका है, नाउ एवरीथिंग हैज बीन चेंज्ड, ठीक है, बिकॉज नाउ ऑल द एंगल्स यू हैव टू मेजर विद रिस्पेक्ट टू दीज एंगल्स, दीज प्लेन्स, ओके। तो पहला जो है आपका इंक्लिनेशन एंगल, सॉरी, पहला जो है आपका इंक्लिनेशन एंगल, अगर मान लीजिए कि इंक्लिनेशन एंगल जो है दैट यू मेजर विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑर्थोगोनल प्लेन, ओके। नाउ अगर मान लीजिए कि देखिए दो एंगल आपने एएसए में कंसीडर किए थे, बैक रेक एंगल एंड द साइड रेक एंगल, ठीक है। साइड रेक एंगल क्या था कि आपका इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही थी चिप्स, एंड बैक रेक एंगल क्या था कि पीछे आएंगी। नाउ अब आपने क्या किया है कि ये जो बैक रेक एंगल जो ये वाला था पोर्शन, आपने इसको एज इट इज हॉरिजॉन्टल रखा है। अगर मान लीजिए ये ऑर्थोगोनल के साथ अगर आप इसको मेजर करेंगे, अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पे कुछ इंक्लिनेशन बनाया है, मतलब बैक रेक एंगल कुछ बनाने की कोशिश की है, तो इसका मतलब क्या होगा कि टूल जो होगा वो आपको थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ेगा। मतलब इसका मेरा कहने का मतलब क्या है कि ओआरएस सिस्टम में आपको बैक रेक एंगल बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप साइड रेक एंगल बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन उस केस में करना क्या पड़ेगा आपको कि आप टूल को थोड़ा सा टिल्ट कर दीजिए। जब आप टूल को टिल्ट करेंगे तो पूरी ज्योमेट्री जो होगी विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेन, एंगल्स जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे। नाउ पहले क्या था, अगर आप ऑर्थोगोनल सिस्टम रखते हैं तो आई विल बी इक्वल्स टू 0, मतलब आपका जो ऑर्थोगोनल कटिंग होगा, ऑर्थोगोनल कटिंग एंड ऑब्लिक कटिंग, अगेन मैंने वो टॉपिक सेपरेट लिया क्योंकि 1 मिनट का टॉपिक है। अगर मान लीजिए कि आपने टूल को बेस प्लेन में ही रखा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्थोगोनल प्लेन, तो आई विल बी इक्वल्स टू 0, मतलब आप ये कह सकते हैं कि दिस इज अ ऑर्थोगोनल कटिंग, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आई इज नॉट इक्वल टू 0, आपका इंक्लिनेशन जो है विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑर्थोगोनल प्लेन इज नॉट इक्वल टू 0, then it means that you are making some angle. So when you are making some angle, it means that is nothing but it's a oblique cutting, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस हो रहे हैं यहाँ पे, तो प्लीज कीप इन माइंड। नाउ सेकंड इज alpha o is nothing but it's a orthogonal rake angle. So orthogonal cutting, orthogonal आपका जो ये जो plane है orthogonal plane, now through this basically you are measuring the surface of this rake face, okay. So that will define, that will easily flow the chip which is coming over the surface of the tool face, that will easily come out from the tool area, okay, this rake face area. So that is the orthogonal rake angle. जिस तरह से आपने यहाँ पे आपका साइड लॉन्गिट्यूडनल, यहाँ पे साइड क्लियरेंस और एंड क्लियरेंस बनाया था, सेम दिस इज ऑर्थोगोनल कटिंग with respect to this orthogonal clearance angle with respect to the orthogonal edge, and if you are making with the cutting edge then it's a auxiliary angle, ठीक है, auxiliary clearance angle. If you are making with this side cutting edge जो है, now the side cutting is nothing but आपका है ही नहीं, so this almost the value of this is very small, this CA that is auxiliary plane, जो आपका cutting edge से जब आप एंगल को मेजर करेंगे this will be very small, okay. So again it will almost negligible, it will be like 6 to 7 or 8 degree only, okay. Now this is nothing but this is the approach angle, and this is if you will see in a diagram, then this angle is measured as approach angle, okay. तो अगर मान लीजिए कि आपका ये 90 डिग्री था और A से ORS अगर मैं कंबाइन करता हूँ, तो ये अगर आपका प्लेन था, तो ये आपका जो था एंगल दिस इज CS, दैट इज साइड कटिंग एज एंगल, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है आपका दिस इज 90 डिग्री, दिस इज लैम्डा। सो यू कैन डिफाइन दिस रिलेशनशिप दैट दिस इज 90 CS प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। तो लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 90 माइनस CS और CS विल बी इक्वल्स टू 90 माइनस लैम्डा, ठीक है। ये रिलेशनशिप ध्यान रखिएगा, दिस प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल और अप्रोच एंगल विल बी इक्वल्स टू 90 माइनस CS, ठीक है। एंड ओके, दिस R इज योर नोज रेडियस, ठीक है। तो okay guys, this is all from my side in this video. Thank you so much for joining this lecture, okay. And if you really like this
video, then please share with your colleagues or students, those who are preparing for the GATE or engineering services examination, so that will they will also be benefited. Okay, so thank you so much for joining.